Welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 8 by Green Apple. And here is the book, Computer Connect. Let's start chapter number 3, MS Access and Introduction. Let's move on to the introduction of the chapter. So our database is an organized collection of structured information. Database क्या है? ये organized collection है structured information का और data typically stored electronically in a computer system. जहां पे डेटा को टिपिकली स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के सिस्टम में. A database is usually controlled by a database management system. ये जो database है इसे कंट्रोल करता है database management system जिसे हम DBMS भी कहते हैं. The DBMS essentially serves as an interface. ये जो DBMS है ये एक इंटरफेस की तरह जो है काम करता है between databases and users. डेटाबेस और यूजर के बीच में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में ensuring that data is consistently organized and remains easily accessible. So इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी डेटा है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो और जो है आसानी से एक्सेसिबल हो. Let's move on to the learning objectives. So after learning this chapter, students will be able to know, they will understand about the database. Database के बारे में आप समझ जाएंगे. You will learn the basics of MS Access. आप MS Access का जो basic है उसके बारे में समझ जाएंगे. You will create a new table. You will learn how to create a new table here. And you will also understand field name and data type. यहाँ पे आप field name और data type के बारे में भी समझ जाएंगे. Let's move on to the conversation between Meera and Hina. So Meera says, hey Hina, have you ever wondered how all our data is organized in apps and websites? क्या तुम्हें पता है कैसे हमारा जितना भी डेटा है वो ऑर्गेनाइज होता है एप्स और वेबसाइट्स पे? Hina says, yeah, I always thought it was like magic. मुझे लगता था ये एक मैजिक है. How does it work? ये कैसे काम करता है मुझे तो नहीं पता. Meera says, it's not magic. It's a thing called a database. ये क्या है? ये मैजिक नहीं है, ये डेटाबेस है. It is like a digital filing cabinet that stores and organizes information. ये क्या है? एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट है जो स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को. Hina says, that sounds cool, but how does it do that? ये तो अच्छा सुनने में लग रहा है लेकिन ये होता कैसे है? Meera explains that when databases use tables to keep everything neat, ये जो डेटाबेस है ये क्या करते हैं? ये टेबल्स को यूज करते हैं हर चीज को सही से रखने के लिए. Think of a table like an Excel spreadsheet. जैसे कि हम एक्सेल स्प्रेडशीट को यूज करते हैं उसकी तरह सोचो. ईच रो इज अ रिकॉर्ड. यहाँ पे जो हर एक रो है वो एक रिकॉर्ड है एंड ईच कॉलम इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. और हर एक कॉलम यहाँ पे एक पीस है इंफॉर्मेशन का. फॉर एग्जाम्पल इन अ स्कूल डेटाबेस, अगर हम स्कूल के डेटाबेस की बात करें, ईच रो कुड बी अ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड. हर एक रो जो है वो एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो सकता है जिसमें आपको कॉलम्स मिलेंगे उनके नेम के लिए, एजेस के लिए और ग्रेड्स के लिए. Now Hina says, so it's like a big Excel sheet for apps. तो इसका मतलब ये एक बड़ी सी एक्सेल शीट है एप्स के लिए. Meera says, exactly. Databases make it easy for apps to search. और ये जो डेटाबेसेस है ये इसे और भी ज्यादा आसान बना देती हैं एप्स के लिए सर्च करने के लिए, ऐड करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए इंफॉर्मेशन. दे आर द बैकबोन ऑफ मेनी एप्स. ये क्या है? ये बैकबोन है बहुत सारे एप्स का एंड वेबसाइट्स का. वी यूज एवरीडे, जिन्हें हम रोज यूज करते हैं. Hina says, that's fascinating. ये तो काफी आसान लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. I want to learn more about databases now. मुझे इसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं और पढ़ना चाहती हूँ. सो मीरा ने क्या कहा?
Mira says, great. Let's dive into it and explore how they work and why they are so important. कैसे ये काम करते हैं, ये क्यों इतने important हैं. So let's move on to the topic. What is a database? So database क्या है? Database is nothing but a collection of information. ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, बस एक collection information का. That is the highly significant part of an organization. जो किसी भी organization का एक बहुत ही important part होता है. For example, we must have a telephone directory in which we maintain all the contact details of our friends. तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं एक टेलीफोन डायरेक्टरी का, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके कॉन्टेक्ट डिटेल को रखते हैं. The contact details would include the telephone numbers, addresses and the email addresses. तो ये जो डायरेक्टरी है, यहाँ पे हमें जो है क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें फोन नंबर्स मिल रहे हैं, उन लोगों के एड्रेस मिल रहे हैं और उनके ईमेल एड्रेस भी मिल रहे हैं. This telephone directory can be called a database. और ये जो टेलीफोन डायरेक्टरी है उसे हम डेटाबेस कह सकते हैं. Similarly, every company also maintains information about its employees. इसी तरीके से हर एक कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखती है, वेंडर्स की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करती है, क्लाइंट्स की और डिस्ट्रीब्यूटर्स की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करती है. This forms the database of that company. और ये क्या करता है, उस कंपनी का डेटाबेस बनाता है. All the information related to the employee, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस एम्प्लॉय से रिलेटेड, क्लाइंट से, वेंडर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड, वो सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं उस डेटाबेस में. अदर देन मेंटेनिंग अ डेटाबेस, अब डेटाबेस को मेंटेन करने के अलावा इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अपडेट दैट डेटाबेस. सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो डेटाबेस है उसे अपडेट करें रेगुलर बेसिस पे. दिस मीन्स दैट वी नीड टू ऐड, डिलीट एंड अपडेट इंफॉर्मेशन. इसका मतलब है कि हमें ऐड करना है, डिलीट करना है या फिर अपडेट करना है इंफॉर्मेशन को उस डेटाबेस में. This is called updating and maintaining a database. और इसे कहा जाता है अपडेट करना या फिर मेंटेन करना डेटाबेस को. The basic purpose of maintaining a database is that, जो बेसिक पर्पस है इस डेटाबेस को मेंटेन करने, वो ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इजिली हमें अवेलेबल हो जाए और किसी भी समय हम उसे एक्सेस कर पाए. We do not need to hunt for the information. हमें बार बार वो इंफॉर्मेशन ढूंढनी ना पड़े जरूरत आने पे, एंड हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो. नाउ कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं यहाँ पे डेटाबेस के. सो लेट्स रीड आउट देम. सो द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटाबेस आर, सम ऑफ द मेजर एडवांटेजेस of using a database are as follows. First, organized storage of data. जो भी यहाँ पे डेटा है वो ऑर्गेनाइज होता है. सो डेटाबेस स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से टेबल के फॉर्म में, ताकि इजिली हम उसे मैनेज कर सके. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी बिना किसी कंफ्यूजन के हम मैनेज कर पाए. नेक्स्ट है फास्ट डेटा सर्च एंड रिट्रीवल. कैसे हम जो है डेटा को जो है फास्टली जो है सर्च कर सकते हैं. सो वी कैन क्विकली सर्च एंड फाइंड एनी इंफॉर्मेशन. हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से सर्च कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं. विद इन सेकेंड्स में हमें वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है उस पर्सन से रिलेटेड या उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड. अनलाइक गोइंग थ्रू पेपर्स और फाइल्स मैनुअली. पेपर और फाइल को बार बार मैनुअली टर्न करने से बेहतर है हम डेटा बेस में हम उस फाइल को या फिर उस पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बहुत ही विद इन अ सेकेंड्स हम ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट, रिड्यूसेस डेटा एरर्स. अब क्योंकि ये सारी चीजें कंप्यूटराइज है तो यहाँ पे आपको कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं मिलेगी. रिड्यूस करता है ये डेटा के एरर्स को. सो ये क्या करता है, मिस्टेक्स को जो है रिड्यूस करता है. रॉन्ग डेटा हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा. एंड जो भी रूल्स है यहाँ पे, ये जो है एम्प्टी फील्ड्स को एक्सेप्ट करता ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, डेटा एरर कम होता है. नेक्स्ट, सेव्स फिजिकल स्पेस. सो जितनी भी डेटा है यहाँ पे वो डिजिटली स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में,
जिसकी वजह से जो है अलग से हमें शेल्स की या फाइल्स की या पेपर्स की जरूरत नहीं होती है, तो हमारा स्पेस भी सेव होता है। नेक्स्ट, इजी टू ऐड, एडिट और डिलीट डेटा। सो यहाँ पे डेटा को यहाँ पे हम इजीली जो है ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। सो ये भी इसका एक जो है बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। इजीली हम अपडेट कर सकते हैं जो भी डेटा है, जो भी चेंजेस है उसके अंदर। किसी का फोन नंबर चेंज करना है, डिलीट करना, ओल्ड रिकॉर्ड, वो सारी चीजें आसानी से यहाँ पे हो सकती हैं। फिर डेटा सिक्योरिटी। सो डीबीएमएस जो है यहाँ पे हम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को, डेटा को पासवर्ड की मदद से। यूजर जो है एक्सेस लेवल यहाँ पे है। सो ओनली ऑथराइज पर्सन कैन व्यू और चेंज द डेटा, जिसकी वजह से जो ऑथराइज पर्सन है सिर्फ वही उस डेटा को देख सकता है और चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, मल्टी यूजर एक्सेस। मेनी यूजर्स कैन यूज द डेटाबेस। एक समय पे बहुत सारे लोग जो है डेटाबेस को यूज कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी ओवरराइटिंग के, सब अपने काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड्स रेपिटेशन ऑफ डेटा, नो डुप्लीकेट्स। यहाँ पे डेटा जो है बार बार रिपीट नहीं होता है, कोई भी डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे डेटा जो भी है वो एक जगह पे एक बार में स्टोर हो जाता है, जिससे जो स्पेस है उसकी भी वेस्टेज नहीं होती है और एक ही इंफॉर्मेशन हमें बार बार नहीं मिलती। नेक्स्ट, हेल्प्स इन मेकिंग रिपोर्ट्स। रिपोर्ट बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, ये क्रिएट करता है ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जैसे कि चार्ट्स, समरीज, ग्राफ्स, जिसकी मदद से हम डेटा को और अच्छे से समझ पाते हैं। फिर क्या करता है, ये सपोर्ट करता है बेटर डिसीजन मेकिंग। सिंस द डेटा इज एक्यूरेट, क्योंकि जो डेटा है वो एक्यूरेट है, अच्छे से ऑर्गेनाइज है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग हैं वो स्मार्ट डिसीजन ले पाते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग। सो ये थे कुछ एडवांटेजेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके? सो डेटाबेस में आपको मिलेंगे, डेटा इज बेसिकली स्टोर्ड इन अ डेटाबेस फाइल। यहाँ जो डेटा जो है वो डेटाबेस फाइल में आपको मिलेगा। डेटा में बी अरेंज्ड इन टेबल्स विच कैन बी रिलेटेड टू वन अनदर। ये जो डेटा है वो टेबल्स में आपको अरेंज मिलेगा जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कहता है टेबल्स डेफिनेशन। सो जो मेन पार्ट है डेटाबेस का वो क्या है, वो कहता है कि स्टोर करना है डेटा को रोज और कॉलम्स में। तो यहाँ जो भी डेटा है वो रोज और कॉलम्स में जो है रहता है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं, स्टूडेंट टेबल जो है दिया गया है जिसमें नेम, क्लास और रोल नंबर उस बच्चे का लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का स्टोर है। नाउ यहाँ पे आपको जो है कुछ इसके सब पॉइंट्स भी दिख रहे हैं। सो सब पॉइंट है फील्ड्स, जिसमें हम कॉलम की बात कर रहे हैं एंड इसका एक डेफिनेशन दिया गया है। सो दीज आर द कॉलम हेडिंग्स। ये जो है कॉलम हेडिंग है टेबल में और हर एक फील्ड में आपको मिलेगा स्पेसिफिक टाइप का डेटा। अब जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं वो ये है कि एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें नेम, एज और क्लास, ये सारी चीजें मेंशन की गई है। फिर जो नेक्स्ट सब पॉइंट है वो है रिकॉर्ड्स, जो कि रोज हैं एंड हर एक रो जो है यहाँ पे टेबल में वो रिकॉर्ड करता है, स्टोर करता है वन फुल सेट ऑफ डेटा, एक पूरे सेट ऑफ डेटा को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, एक रो है जिसमें अमित 13 क्लास 8 ये लिखा हुआ है, ये एक ही रिकॉर्ड में यहाँ पे है। नेक्स्ट सब पॉइंट इज टेबल स्ट्रक्चर डेफिनेशन। सो ये क्या करता है, ये शो करता है हमें जो भी डिजाइन है हमारे टेबल का वो व्हाट फील्ड्स इट हैज, इसमें क्या क्या फील्ड्स हैं, देयर नेम्स, उनके क्या क्या नाम है, डेटा टाइप्स, कौन कौन से तरीके के डेटा है, यहाँ पे टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है और भी चीजें, एंड अदर प्रॉपर्टीज और दूसरी प्रॉपर्टीज। सो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट आता है डेटा शीट डेफिनेशन। सो व्यू इन a database where you can see actual data in table form like a spreadsheet। तो स्प्रेडशीट की तरह यहाँ में हमें डेटा जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्राइमरी की डेफिनेशन। सो अ फील्ड दैट हैज अ यूनिक वैल्यू, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे एक यूनिक वैल्यू दिखाई जाती है हर एक रिकॉर्ड की।
हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने में उन्हें। जैसे कि यहाँ पे आपको रोल नंबर दिख रहा है, ये क्या है, एक प्राइमरी की है जो कि इस टेबल में दिया गया है, स्टूडेंट टेबल में दिया है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स डेफिनेशन, अ यूजर फ्रेंडली स्क्रीन, एक यूजर फ्रेंडली स्क्रीन, इसे यूज किया जाता है एंटर करने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए डेटा को। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फॉर्म टू ऐड अ न्यू स्टूडेंट्स डिटेल, नए स्टूडेंट की डिटेल को यहाँ पे ऐड किया जाता है फॉर्म्स में। नेक्स्ट कम्स क्वेरीज डेफिनेशन, इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को पूछने के लिए इसे यूज करते हैं एंड गेट स्पेसिफिक रिजल्ट, जो भी स्पेसिफिक रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे मिलता है उस डेटाबेस से। एग्जाम्पल इज ऑल्सो शोन, a query to find students older than 13 साल से बड़े बच्चों की जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल रही है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स डेफिनेशन, सो रेडी टू प्रिंट समरीज ऑफ डेटा, सो ये जो है यूज किया जाता है समरीज को प्रिंट करने के लिए डेटा का फ्रॉम द डेटाबेस, डेटाबेस से, ऑफन विथ फॉर्मेटिंग के साथ। And the example is a report of all students in class 8. Class 8 में जितने भी बच्चे हैं उनका एक रिपोर्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। Next, relationships definition. So links between tables using common fields. यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेबल्स के बीच में जिसमें कॉमन फील्ड है। यूजुअली द प्राइमरी की, जहाँ पे प्राइमरी की मिलेगा। एग्जाम्पल है लिंकिंग द स्टूडेंट्स टेबल विथ अ मार्क्स टेबल यूजिंग रोल नंबर। सो यहाँ पे एक जो है स्टूडेंट टेबल जो है बनाया जा रहा है जिसमें मार्क्स टेबल है और रोल नंबर्स को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स प्रेजेंट डेटा फ्रॉम टेबल्स एंड क्वेरीज इन एन अट्रैक्टिव कस्टमाइजेबल फॉर्मेट। रिपोर्ट्स क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं डेटा को टेबल से, क्वेरीज से एक अट्रैक्टिव और कस्टमाइजेबल मैनर में, फॉर्मेट में, जिसमें जो है टाइटल्स, हेडर्स एंड फुटर्स ये सारी चीजें होती हैं एंड इवन लोगोज और ग्राफिक्स भी इंक्लूडेड होते हैं। So these are some points. Now let's move on to the Microsoft Access 2016. So Microsoft Access और MS Access दोनों ही नामों से बुलाया जाता है, is a relational database management system. ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम RDBMS कहते हैं, which means that MS Access can create, modify and maintain databases. इसका मतलब है कि MS Access क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और मेंटेन कर सकता है डेटाबेसेस को। It can also create relationship between various databases. अलग अलग डेटाबेसेस के बीच में ये रिलेशनशिप को भी क्रिएट कर सकता है। Any information that is retrieved using this particular software, कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिलती है इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के बाद will be complete and retrieved from all the other databases. So वो complete होगी और जितने भी databases है उन सबसे ली गई होगी। It is because of these reasons and feasibility only that MS Access has become one of the most popularly used RDBMS all over the world. So इन सारे reasons की वजह से ही जो हमारा MS Access है वो काफी ज्यादा पॉपुलर RDBMS बन चुका है पूरी दुनिया में। Using MS Access we can create tables, queries, forms and reports. अब MS Access को यूज करके हम ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, हम क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं, हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं और हम रिपोर्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं एंड कनेक्ट देम टुगेदर विथ मैक्रोस, और इन सब चीजों को मैक्रोस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो हैज रिपोर्ट क्रिएशन फीचर, यहाँ पे आपको रिपोर्ट क्रिएशन फीचर भी मिलेगा विच कैन वर्क विथ एनी डेटा सोर्स, जिसमें हम किसी भी डेटा सोर्स के साथ काम कर सकते हैं। That access can access easily, जिसे हम access के थ्रू जो है easily access कर सकते हैं। Now let's move on to starting with MS Access 2016. कैसे हम इसे start कर सकते हैं? So to start MS Access, we have to follow the given steps. First, we have to click on Start button. So हमें जो है सबसे पहले Start button पे जाना है। Now we have to scroll all programs. All programs में scroll करना है। Now click करना है Access पे। सो ये हमारा एक्सेस, इस पे क्लिक करना है, जो एक्सेस की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी।
सो ऐसे हम जो एमएस एक्सेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ अब हमने जैसे इसको क्लिक किया तो क्या हुआ, ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई। नाउ हाउ कैन वी क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस, कैसे हम एक ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। सो एक्सेस विंडो में जाने के बाद हमें जाना है ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन पे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें जाना है। नाउ टाइप द नेम फॉर द डेटाबेस इन द फाइल नेम बॉक्स। अब हमें जो भी नाम है डेटाबेस के लिए वो यहाँ पे फाइल नेम बॉक्स में लिखना है एंड क्लिक करना है क्रिएट पे। सो अब हम जाएंगे क्रिएट बटन पे और वहां पे जाके हम क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं आप क्रिएट बटन है, यहाँ पे हमने फाइल का जो भी नाम है वो डाल दिया है। सो एक्सेस विल ऑटोमेटिकली असाइन द .accvd मीन्स ये जो हमारा जो है थंबनेल है, एक्सटेंशन है, ये जो है एक्सेस जो है ऑलरेडी असाइन कर देगा जो भी डेटाबेस हम यहाँ पे बना रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमने क्रिएट किया है ब्लैंक डेटाबेस को। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो। सो अब क्या क्या कंपोनेंट्स है इस विंडो के, तो आप देख सकते हैं पहले आता है हमारा फाइल टैब, टेबल ऑब्जेक्ट, नेविगेशन पेन, स्टेटस बार, दिस इज आवर वर्क एरिया, दिस टॉप एरिया इज आवर टाइटल बार जहां पे आपको टाइटल मिल रहा है। नेक्स्ट दिस एरिया इज आवर रिबन एरिया। सो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे एमएस एक्सेस विंडो के। ना क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन डेटा शीट व्यू, कैसे हम एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं डेटा शीट व्यू में। So data sheet view allows us to create a table and then add new fields simply by typing the fields name. So ये जो डेटा शीट व्यू है ये हमें हेल्प करता है टेबल को क्रिएट करने में। यहाँ पे हम नए फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, सिर्फ सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें नाम को टाइप करना होगा कॉलम हेडिंग प्लेस होल्डर में। नाउ डेटा शीट व्यू इज गुड व्हेन वी नीड अ क्विक टेबल। सो ये जो व्यू है ये तब अच्छा होता है जब हमें एक नया टेबल, क्विक टेबल चाहिए होता है जिसमें आपको मिलेंगे जस्ट ओनली फ्यू फील्ड्स, जिसमें सिर्फ आपको कुछ फील्ड्स मिलेंगे। नाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग डेटा शीट व्यू, अगर आपको टेबल को क्रिएट करना है डेटा शीट व्यू को यूज करके तो हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा। हमें क्लिक करना होगा क्रिएट टैब पे जो कि आपको रिबन में मिलेगा, ये आप देख सकते हैं क्रिएट टैब। नाउ क्लिक करना है टेबल ऑप्शन पे, यहाँ पे जाने के बाद अब हमें टेबल ऑप्शन को चूज करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं एमएस एक्सेस में ये जो है टेबल, नया जो टेबल ऑप्शन है वो डेटा शीट व्यू में आपको दिख जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हमें जो है डबल क्लिक करना है कॉलम हेडर पे और क्रिएट करना है एक फील्ड नेम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो है एक नया फील्ड नेम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ टाइप अ नेम फॉर द फील्ड, अब हमें जो है एक नया नेम जो है यहाँ पे टाइप करना है अपने फील्ड के लिए। फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रेस एंटर, एंटर की को प्रेस कर दें। क्लिक ऑन द नेक्स्ट कॉलम, अब हमें नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करना है और क्लिक करना है क्लिक टू ऐड अ न्यू फील्ड। सो नए कॉलम पे क्लिक करके हमने एक नया जो है फील्ड यहाँ पे ऐड किया है। नाउ सेलेक्ट करना है डेटा टाइप, कहां से, उस फील्ड में से। एग्जाम्पल हम यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर हमें ऐड करना है नेम हमारे फील्ड का। नाउ टाइप द नेम फॉर द फील्ड, उस फील्ड के लिए नाम हम यहाँ पे टाइप करें। अब रिपीट करना है स्टेप्स को 6 से लेके 8 तक, क्रिएट करना है जितने भी फील्ड्स हम चाहते हैं अपने टेबल में, तो इतनी बार हमें इसे रिपीट करना है। इफ वी वांट टू रीसाइज अ कॉलम, अगर हमें अपने कॉलम को रीसाइज करना है तो हमें क्या करना होगा, वी कैन ड्रैग द कॉलम बॉर्डर, हम जो कॉलम बॉर्डर है उसे ड्रैग कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से या फिर राइट से। नाउ हियर टेक टिप्स आर गिवन। एक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स एन आईडी फील्ड, एक्सेस क्या है, खुद से एक आईडी फील्ड को क्रिएट कर देता है विद द टेबल। यू कैन रीनेम दिस इफ रिक्वायर्ड, आप इसे रीनेम कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टाइप द नेम ऑफ द फील्ड, अब हमें जो भी हमारा फील्ड है उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देना है और रिपीट करना है स्टेप्स को 5 से 7 तक, ताकि हम क्रिएट कर सकें और फील्ड्स को टेबल में से। इफ यू वांट टू रिसाइज अ कॉलम, अगर हमें कॉलम को रिसाइज करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ड्रैग करना होगा कॉलम बॉर्डर को लेफ्ट से राइट की तरफ। नाउ
क्लिक करना है इनसाइड द फर्स्ट फील्ड के अंदर हमें क्लिक करना है of the first row and type the data which we want to enter as the first record. So अब हमें जो यहाँ पे डेटा जो भी हमें चाहिए वो हम टाइप कर देंगे. फिर प्रेस करना है टैब की ताकि हम अगले टैब में पहुंच सके. Now type the next field's data. अब नेक्स्ट फील्ड के डेटा को हमें टाइप कर देना है. अब इसे रिपीट करना है कौन कौन से स्टेप्स को 10 और 11 को ताकि हम ये पूरा जो भी रिकॉर्ड है उसे कंप्लीट कर सके. सो व्हेन वी रीच द लास्ट फील्ड, जब हम लास्ट फील्ड तक पहुंचते हैं वी कैन प्रेस एंटर. एंटर की को प्रेस कर सकते हैं टू स्टार्ट अ न्यू रिकॉर्ड इजीली, ताकि हम एक नया रिकॉर्ड इजीली जो है स्टार्ट कर पाए. तो आप देख सकते हैं कैसे हमने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली. नाउ क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन डिजाइन व्यू. अब डिजाइन व्यू में हम कैसे एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं. सो डिजाइन व्यू हमें हेल्प करता है क्रिएट करने में एक नया टेबल विद द एग्जैक्ट फील्ड्स दैट वी वांट इन द टेबल. जो भी हमें टेबल में चाहिए वो एग्जैक्ट फील्ड्स यहाँ पे हमें दिखेंगे. सो इन डिजाइन व्यू द विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 पेन्स. डिजाइन व्यू में जो हमारा विंडो है वो 2 पेन्स में डिवाइड हो जाता है. टॉप पेन फॉर क्रिएटिंग फील्ड नेम, स्पेसिफाई फील्ड टाइप एंड एंटर फील्ड डिस्क्रिप्शन. सो टॉप पेन में हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं. एंड बॉटम पेन फॉर स्पेसिफाइंग द फील्ड प्रॉपर्टी. जो भी फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं दोनों चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं. नाउ व्हेन वी क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं डिजाइन व्यू में वी मस्ट इंडिकेट द फॉलोइंग. ये सारी चीजें हमें इंडिकेट करनी होती है. पहला फील्ड नेम. सो यहाँ पे आपको मिलेगा नेम. जो भी फील्ड है आपका ये रिप्रेजेंट करता है जो भी कंटेंट है आपका फील्ड का वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं. जैसे कि हम नेम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, सिटी लिख सकते हैं. ईच फील्ड नेम शुड हैव अ यूनिक नेम. एक यूनिक नेम होना चाहिए which cannot exceed the 64 characters in length. जो 64 characters से ज्यादा नहीं हो सकता है. फिर हम बात करते हैं डेटा टाइप की. सो हर एक फील्ड जो है यहाँ पे जो है एक डेटा टाइप होना चाहिए जो डिफाइन करता है what we can store in it. हम उसमें क्या स्टोर कर सकते हैं. डेटा एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू वैलिड एंट्रीज. ये जो डेटा एंट्री है ये कुछ वैलिड एंट्रीज तक ही रिस्ट्रिक्टेड है. फॉर द टाइप वी चूज, किस तरीके का हम जो है टाइप को हम चूज कर रहे हैं. विच हेल्प्स प्रिवेंट डेटा एंट्री एरर्स, जो कि डेटा एंट्री एरर्स को प्रिवेंट करने में मदद करता है. अब एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है वी कैन नॉट एंटर लेटर्स इन द फील्ड सेट टू नंबर्स. सो जिसको हमने नंबर्स में सेट किया वहां पे हम लेटर्स को नहीं ऐड कर सकते. एंड वी मस्ट एंटर वैलिड डेट्स और टाइम्स इन द डेट टाइम फील्ड. और डेट टाइम फील्ड में हमें वैलिड जो भी डेट और टाइम है वो ऐड करना होगा. नेक्स्ट इज डेटा टाइप, यूसेज एंड साइज. सो किस तरीके का डेटा टाइप हम डाल सकते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं और वो किस साइज का हो सकता है. सो पहला आता है हमारा ऑटो नंबर. ये एक यूनिक वैल्यू जनरेट की जाती है एक्सेस में हर एक नए रिकॉर्ड के लिए. इसका साइज 4 बाइट्स का हो सकता है. नेक्स्ट इज नंबर. ये न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करता है और इसका जो साइज है 1 से लेके 1248 या फिर 16 बाइट्स का हो सकता है. नेक्स्ट आता है शॉर्ट टेक्स्ट. ये स्टोर करता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा को जहां पे नेम्स, टाइटल्स और चीजें हो सकती हैं. जहां पे आपको टोटल 255 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं. फिर आता है आपका लॉन्ग टेक्स्ट. ये स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा. ये लार्ज अमाउंट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करता है जैसे कि सेंटेंसेस हो गए या फिर पैराग्राफ्स हो गए. एंड यहाँ पे ये अप टू 1 GB हम स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डेट टाइम. ये क्या करता है, स्टोर करता है डेट और टाइम को और ये 8 बाइट्स इसकी कैपेसिटी है. फिर बारी है करेंसी की. ये स्टोर करता है मॉनेटरी डेटा को, स्टोर करता है अपने अंदर विथ डेसिमल प्लेसेस ऑफ प्रिसीजन, मींस डेसिमल प्लेसेस भी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. एंड ये टोटल 8 बाइट्स का होता है. फिर आता है येस नो. ये स्टोर करता है बूलियन मींस ट्रू फॉल वैल्यूज को. एक्सेस क्या करता है, स्टोर करता है न्यूमेरिक वैल्यूज को. 0 का मतलब यहाँ पे फॉल्स है, -1 फॉर ट्रू. एंड ये जो है इसकी जो है कैपेसिटी वो 1 बाइट की है. फिर हम बात करते हैं हाइपरलिंक की. ये क्या है, ये एक लिंक एड्रेस है
डॉक्यूमेंट का या फिर फाइल का, इंटरनेट पे या फिर किसी इंटरनेट पे या फिर लोकल एरिया नेटवर्क पे या फिर लोकल कंप्यूटर पे। एंड इसकी जो कैपेसिटी वो है अप टू 8192 कैरेक्टर्स का। फिर आता है अटैचमेंट। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं फाइल्स को, जैसे कि पिक्चर्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, स्प्रेडशीट्स हो गए या फिर चार्ट्स हो गए। एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2 GB तक। Now let's move on to the description. So we can enter a detailed description of the field in Access. Access में जो भी field है उसका एक detailed description हम यहाँ पे enter कर सकते हैं। To create a new table in design view, अगर आपको एक new table create करना है design view में, you have to follow the given steps. ये जो steps दिए गए इनको follow करना है। पहला step है open the database and click on create tab on the ribbon. हमें जो है database को open करना है, क्लिक करना है क्रिएट टैब पे, जो कि आपको रिबन में मिलेगा। नाउ अब हमें जो है जाना है टेबल डिजाइन टैब पे, जो कि आपको मिलेगा टेबल टूल्स पे, जो कि आपको टाइटल बार में दिखे। फिर जो है फील्ड नेम कॉलम पे जाना है और यहाँ पे जाके जो नेम है हमारे फर्स्ट फील्ड में वो एंटर करनी है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पे क्रिएट की है। नेक्स्ट प्रेस करना है टैब की को, ताकि हम जो है नेक्स्ट टैब में जा सके, वहां पे हम इंसर्ट कर सके जो भी डेटा है। सो डेटा टाइप फील्ड हमें यहाँ पे मिलेगा। द इंसर्शन पॉइंट मूव्स टू द डेटा टाइप कॉलम। ये जो इंसर्शन पॉइंट है वो डेटा टाइप कॉलम में चला जाएगा और हमें दिखाएगा कि हम यहाँ पे डेटा को एंटर कर सकते हैं। द वर्ड शॉर्ट टेक्स्ट वन ऑफ द पॉसिबल डेटा टाइप्स विल बी डिस्प्लेड करेंटली। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट जो पहले से लिखा हुआ आ रहा है, सो ये आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू चेंज द डेटा टाइप। अगर हमें डेटा टाइप को चेंज करना है तो हम क्लिक कर सकते हैं ड्रॉप डाउन एरो पे और चेंज कर सकते हैं डेटा को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। When we select as per our choice, जब हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं डेटा को, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो दिखने लगेंगी लोअर पेन। सो जो भी हमने चूज किया उसकी देखिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, प्रेस करना है टैब की को और मूव करना है नेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट पे ऑफ द डिस्क्रिप्शन कॉलम। सो अब ये हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो है डिस्क्रिप्शन कॉलम। यहाँ पे हमें जो है इंसर्ट करना है डेटा को। अब हमें टाइप करना है टेक्स्ट, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और ये है, ये कहाँ टेक्स्ट टाइप होगा, ये हमारे डिस्क्रिप्शन कॉलम में टाइप होगा। नाउ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन कॉलम में हमने जो है डेटा को एंटर कर दिया है। नाउ प्रेस द टैब की अगेन। अब फिर से हमें टैब की को प्रेस करना और मूव करना है फील्ड नेम कॉलम को, कहाँ पे, इन द सेकेंड रो, एंड टाइप द टेक्स्ट इन द कॉलम। और फिर से हमें टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप करना है इस कॉलम में। सो ऐसे हम डेटा को एंटर करते जाएंगे। नाउ रिपीट द स्टेप 6 एंड 7। अब फिर से हमें स्टेप 6 और 7 को रिपीट करना है और एंड वी हैव टू मेक ऑल द रिमेनिंग एंट्रीज, और जितनी भी एंट्रीज बची उन सबको कंप्लीट करना है। और इसके बाद हमारा जो टेबल है वो अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इज सेटिंग प्राइमरी की। अब प्राइमरी की इज रेफर टू द फील्ड विच कंटेन्स यूनिक वैल्यूज। प्राइमरी की है, ये क्या है, ये एक फील्ड है जिसमें आपको यूनिक वैल्यूज मिलेंगी फॉर ईच रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड के लिए, दैट हेल्प्स अस डिफरेंशिएट द रिकॉर्ड्स इन अ फाइल, जो हमें हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में रिकॉर्ड्स को फाइल में। फॉर एग्जाम्पल द डेटा स्टोर्ड इन द की फील्ड वुड यूज एम्प्लॉय आईडी। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ जो डेटा है जो भी स्टोर किया गया है की फील्ड एम्प्लॉय आईडी में एज द की फील्ड बिकॉज इट विल यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एम्प्लॉय, क्योंकि ये क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा हर एक एम्प्लॉय को। सो इसलिए ये यहाँ पे जो है की के रूप में रखा गया है। इन ईच न्यू टेबल दैट वी क्रिएट, जितने भी टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, वी विल वॉन्ट टू सेट वन फील्ड एज द प्राइमरी की। तो हमें जो है हर एक में जो है एक फील्ड को प्राइमरी की में कन्वर्ट करना होगा, सेट करना होगा। So MS Access uses this key to relate this table's record. MS Access क्या करता है, इस की को यूज करता है रिलेट करने के लिए टेबल के रिकॉर्ड को
टू दोज विच आर इन अनदर टेबल, दूसरे टेबल्स के साथ। सो कैसे हमें सेट करना है प्राइमरी की, उसके लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए हैं फॉलो करना होगा। फर्स्ट हमें राइट क्लिक करना है एम्प्लॉय आईडी फील्ड पे। सो यहाँ पे हमने राइट क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं प्राइमरी की ऑप्शन यहाँ पे हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट प्राइमरी की। हमें जो है प्राइमरी की को सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, जैसे ये ओपन होता है। सो इससे क्या होगा, दिस मेक्स द फील्ड एज अ प्राइमरी की फील्ड, ये जो है इस फील्ड को प्राइमरी की फील्ड बना देता है। वी विल सी अ लिटिल की आइकन टू द लेफ्ट ऑफ द आईडी। सो आईडी के आप जो है लेफ्ट साइड में आप अगर देखेंगे तो एक छोटा सा की आइकन हमें दिखाई देगा विच इंडिकेट्स द प्राइमरी की फील्ड, जो इस प्राइमरी की फील्ड को इंडिकेट करता है। नाउ देयर इज अ नोट ऑल्सो, एक्सेस विल ऑटोमेटिकली जनरेट अ नंबर ईच टाइम अ न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड इन द टेबल। सो एक्सेस क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली एक नंबर को जो है डेवलप कर लेगा, जनरेट कर लेगा जितनी बार एक नया रिकॉर्ड जो है क्रिएट किया जाता है टेबल में। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग फील्ड प्रॉपर्टीज। ईच फील्ड हैज सम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट डिफाइंस एंड कंट्रोल्स इट। जितने भी फील्ड्स हैं उनमें कुछ आपको सेट ऑफ प्रॉपर्टीज मिलेंगे जो उसको डिफाइन करता है या फिर कंट्रोल करता है। दीज प्रॉपर्टीज इंक्लूड बेसिक्स, ये जो प्रॉपर्टीज है आपको बेसिक्स मिलेंगे जैसे कि साइज, फॉर्मेट हो गया, एज वेल एज रूल्स फॉर द एंट्रीज इन इट, जो भी रूल्स हैं उस एंट्री से रिलेटेड वो सारी चीजें मिलेंगी। व्हेन अ फील्ड इज सिलेक्टेड इन डिजाइन व्यू, जैसे ही हम फील्ड को सिलेक्ट करते हैं डिजाइन व्यू में, इट्स प्रॉपर्टीज अपीयर इन द प्रॉपर्टीज पेन, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपको प्रॉपर्टीज पेन में दिखने लगेंगी। तो आप देख सकते हैं ये है फील्ड प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल, लुकअप, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखेंगी। लेट्स रीड अबाउट देम। सो जनरल टैब, ये जनरल टैब है, इसमें आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज की वी विल वर्क विद, जिसके साथ हम काम करेंगे। फिर आता है लुकअप टैब। सो ये जो लुकअप टैब है इसे यूज किया जाता है फॉर सेटिंग अप लुकअप लिस्ट, लुकअप लिस्ट को सेट करने के लिए। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो कुछ प्रॉपर्टीज जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट की वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। क्लिक द एरो टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, हमें जो है यहाँ पे एरो को क्लिक करना होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करने के लिए और उसको देखने के लिए। फिर आता है प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन। व्हेन द इंसर्शन पॉइंट इज इन प्रॉपर्टीज बॉक्स, जब ये इंसर्शन पॉइंट जो है प्रॉपर्टीज बॉक्स में होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रॉपर्टी विल अपीयर हियर। सो जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट आता है येस नो प्रॉपर्टीज। सो कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं रिप्रेजेंट करती हैं येस नो क्वेश्चंस। सो जिसमें हम देख सकते हैं विच आर मोस्टली फॉर अस विद सम डिफॉल्ट वैल्यू, जिसमें हमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज मिलती हैं। नेक्स्ट है सेविंग एंड क्लोजिंग द टेबल, कैसे हम टेबल को सेव और क्लोज कर सकते हैं। सो आफ्टर वी हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, जैसे हमने स्ट्रक्चर को क्रिएट कर दिया टेबल का, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सेव द टेबल इन द डेटाबेस। सो जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमें जो है टेबल को सेव करना है डेटाबेस में। सो वी शुड गिव अ नेम टू द टेबल बिफोर सेविंग इट, और हमें एक नाम देना है इस टेबल को सेव करने से पहले। सो वंस वी हैव सेव द टेबल, जब हमने एक बार टेबल को सेव कर दिया है, वी कैन कंटिन्यू वर्किंग इन द टेबल, हम उस टेबल में फिर से काम करना शुरू कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं विंडो को। सो कैसे सेव करना है, लेट्स सी। टू सेव अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे पहले हमें क्लिक करना है सेव बटन पे, जो कि हमें क्विक एक्सेस टूल बार पे मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स पे जाना है, टाइप करना है जो भी हमारा टेबल नेम है, टेबल नेम बॉक्स पे जाके एंड क्लिक करना है ओके पे। एमएस एक्सेस क्या कर देगा, सेव कर देगा हमारे टेबल को एंड उसको एक नेम दे देगा जो कि वहां पे अपीयर होने लगेगा। नाउ टू क्लोज अ टेबल, अब कैसे टेबल को क्लोज करना है। सो टू क्लोज द टेबल वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द टेबल। अब हमें क्लोज बटन पे क्लिक करना है टेबल को क्लोज करने के लिए एंड हमारा जो टेबल है वो क्लोज हो जाएगा। नाउ एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ टेबल, कैसे हम रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं अपने टेबल में। सो द टेबल शुड बी ओपन
so that the records can be added to the table. अब टेबल में अगर हमें रिकॉर्ड्स को ऐड करना है तो टेबल ओपन होना चाहिए. द टेबल विल बी डिस्प्लेड इन डेटा शीट व्यू. जो टेबल है वो हमें डेटा शीट व्यू में दिखेगा. नाउ टू ऐड रिकॉर्ड्स टू अ टेबल, अगर हमें टेबल में रिकॉर्ड्स को ऐड करना है तो हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा. पहले हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है टेबल पे, एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल ऑप्शन पे, डेटाबेस विंडो पे. नाउ अब टाइप करना है आईडी नंबर, कहां पे जाके, एम्प्लॉय आईडी फील्ड. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फील्ड में हमने आईडी नंबर डाल दिया है. नेक्स्ट, press the tab key to complete the other entries for the employee ID 1001. So ये जो हमारा employee ID 1001 है, इसके बाकी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे. किसकी मदद से, टैब की मदद से. टाइप द फॉलोइंग एंट्रीज बाय प्रेसिंग द टैब की आफ्टर ईच वन. और बार बार टैब की को प्रेस करके हमें सारी एंट्रीज को फिल करना है. आफ्टर टाइपिंग द लास्ट एंट्री को टाइप करने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर, प्रेस द टैब की अगेन. फिर से हमें टैब की को प्रेस करना है. द इंसर्शन पॉइंट कम्स टू द आईडी फील्ड. ये जो इंसर्शन पॉइंट है ये वापस से आईडी फील्ड में आ जाएगा सेकेंड रो के. और जो दिए गए बाकी रिकॉर्ड्स हैं वो हमें फिल कर लेना है इन सारे स्टेप्स, स्टेप नंबर 2 से लेके 4 को बार बार रिपीट करके. सो ऐसे हमने एंट्रीज को फिल कर दिया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट. So in data sheet view, the table is represented as a collection of rows and columns called data sheet. So data sheet view में जो tables हैं वो rows और columns में जो है दिखते हैं, जिससे हम data sheet कहते हैं. Now let's move on to let's summarize. So how will we add records in a table in MS Excel, and what is the use of field properties pane in MS Excel? So these two are the questions you have to answer them yourself. Next is closing our database. कैसे हमें database को close करना है? So when we close a database, जैसे हम database को close करते हैं, MS Access window will be still open. So क्या होगा, जो MS Access का window है वो अब भी खुला रहेगा. In Access we can open as many databases as we want at the same time. MS Access में हम जितने चाहे उतने डेटाबेस खोल सकते हैं एक समय पे. क्लोजिंग अ डेटाबेस फ्री अप आवर कंप्यूटर्स मेमोरी. अगर हमने डेटाबेस को क्लोज कर दिया तो हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो फ्री हो जाती है. सो टू क्लोज अ डेटाबेस वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. डेटाबेस को क्लोज करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इनको फॉलो करना होगा. पहले हमें क्लिक करना है फाइल टैब पे, तो जो फाइल मेन्यू है वो ओपन हो जाएगी. फिर हमें क्लिक करना है क्लोज डेटाबेस ऑप्शन पे. सो आफ्टर क्लिकिंग हियर द फाइल मेन्यू विल स्टिल बी ओपन. जो फाइल मेन्यू है अभी भी खुला रहेगा. एंड द न्यू कमांड बिकम्स सेलेक्टेड. और जो नया कमांड है वो सेलेक्ट हो जाएगा. ना ओपनिंग आवर डेटाबेस फाइल. अब जो डेटाबेस फाइल है उसे ओपन कैसे करना है? सो टू ओपन द डेटाबेस वी हैव क्रिएटेड फॉलो द गिवन स्टेप्स. जो भी डेटाबेस हमने बनाया उसको ओपन करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करना होगा. फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब. फाइल टैब पे जाना है. नाउ क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन द ब्राउज बटन. ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर ब्राउज बटन पे जाना है. द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. और जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा. नाउ क्लिक हियर एंड टू नेविगेट टू द डिफरेंट लोकेशन. अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है और जो नया लोकेशन है वहां पे हम नेविगेट कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फाइल. जो नेम है हमारे फाइल का उस पर क्लिक करें. दैट वी वांट टू ओपन, जिसको हमें ओपन करना है. तो इतनी सारी फाइल्स है उसमें से जो भी हमें चाहिए वो हम ओपन कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन ओपन बटन और फिर अब हमें ओपन बटन पे क्लिक कर देना है. तो क्या होगा, हमारा जो भी फाइल है वो ओपन हो जाएगा. So this was the chapter. Now let's move on to reboot. MS Access is a relational database management system, RDBMS, and can create, modify, and maintain databases. MS Access window has several components such as title bar, ribbon, navigation pane, etc. Using MS Access, tables, queries, forms, and reports can be created and can be connected with macros. Our database is a collection of information
which is the most essential part of an organization. The basic purpose of maintaining a database is easily availability and accessibility in time. Navigation pane helps to view database objects such as tables, queries, reports, and forms. Saving and closing the table is important in database. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to the book exercise, which is Let's Go. Here, A exercises fill in the blanks with the help of the words given in the box. So here the first one is the navigation pane displays the database objects that we create such as tables and forms. Second, text data type allows us to enter alphanumeric characters. Third one, a primary key refers to the field which contains unique values for each record. Fourth, MS Access is a relational database management system. Fifth one, the central storage of the data reduces data duplicacy. Sixth, the size of date time data type is 8 bytes. Now let's move on to B exercise, which is write true or false. So here the first one is tab key is used to bring the insertion point to the next field in table. True. Second, each field has a set of properties which defines and controls it. True again. Third, table structure is formed after creating a table. False. Fourth, blank database option is present in Create tab. True. Fifth, currency allows us to store a sequential number for each and every record. This one is false. And the sixth one is primary key contains unique value for each record. This is true. So these are the answers to true or false. Now let's move on to C exercise, which is tick the right answer. So here the first one is which of the following is an example of database, telephone directory, decision box or storybook? Here the correct answer is telephone directory. Second, which of the following is a component of database, form, record or data? Correct answer is data. Third, which of the following helps us to create a new table? Data type, date, time, design, view. So here the correct answer is design view. Fourth one, which of these data types is used to store monetary data? Hyperlink, currency, yes, no or text. Here the correct answer is currency. Fifth one, which of the following tab is majorly used for setting up lookup lists? Properties pane, lookup tab, general tab. Correct answer is lookup tab. Sixth, dash refers to a group of related fields. Row, record, queries. Correct answer is record. So these are the answers that you have to mark and you have to do the rest of the questions. Yes. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.